नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न का मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं कुमार जितेंद्र। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे पहले विदेश दौरे पर। पहले विदेश दौरे में भूटान पहुंचे नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी के भूटान पहुंचने पर प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे ने उनका स्वागत किया। वहां दोनों देशों के राष्ट्रगान की धुन भी बजाई गई। 2 दिन के इस दौरे को कूटनीति के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। नरेंद्र मोदी के साथ विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश सचिव सुजाता सिंह के अलावा अन्य अधिकारी भी भूटान पहुंचे हैं। भूटान के साथ रिश्तों को पहली पसंद बताने से वहां की जनता बेहद खुश है। वहां के लोग इस बात से भी खासे उत्साहित हैं कि नरेंद्र मोदी ने जापान, चीन और जर्मनी जैसे देशों को छोड़कर भूटान को प्राथमिकता पर रखा। उत्तर पूर्व छात्र सोसाइटी ने दिल्ली विश्वविद्यालय में किया एक सफाई अभियान का आयोजन। यह आयोजन दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस में किया गया था। उत्तरी दिल्ली के मेयर योगेंद्र चंदोलिया ने छात्रों के इस प्रयास की सराहना की। नॉर्थ ईस्ट छात्र सोसाइटी ने वातावरण को साफ रखने के उद्देश्य से सफाई अभियान का आयोजन किया था। आयोजक सेवियों ने बताया कि सफाई अभियान का एक और उद्देश्य यह था ताकि बाकी लोग भी इससे प्रेरित हो सके। सेवियों की इस बात पर एक छात्र ने कहा कि वो सेवियों की इस बात से सहमत है और वो चाहते हैं कि भविष्य में एमएनसी से अधिक भागीदारी और समर्थन मिले। The motive of organizing this drive is we want to create and promote a civic sense to the people of living, to the DU students, to create an awareness of cleanliness, to keep it clean. Being a student, it's our duty to keep our campus clean. And every morning I could see people coming and cleaning this area. Instead of spending those money, we can spend those money and invest those money in a better way where slums people are living, or to promote a unprivileged student for education also. That's our motive. And second thing is that many people feel that only Northeast people can be seen in the paper only for a bad reason. We so prove that we also can be in the paper for a good reason also. By doing this program, we believe that we can create a sense of awareness of our civic sense. It is our duty, our own responsibility to clean up our mess. We cannot leave it for others to do it. And as a student and as a part of the Northeast students, we believe that it is a very important organization, and it is one of the first initiative like this taken up this year, and we believe that we'll be able to create social awareness about cleanliness. Today very less students turn up, but still then I'm very happy because today's Father's Day and very less people turn up, and we have collided with different programs. Still then Northeast people turn up in this very program. And we are very happy and we are very proud because most of the students contribute their own scholarship. They took out money from their own pocket. We purchased our dustbin and water and all those necessary stuffs from our own pocket money. We didn't take any help from anyone. If our environment is clean, even our mind is fresh, and it's free from disease. And I also want to tell everyone to continue doing this, and not only Northeast people, but everyone around our city. I want our city clean so that all of us will be good enough. Wherever we go, we will be free. Like cleanliness is what we need, and also our mind will be fresh. The cleanliness drive organized by the Northeast Student Society in Delhi University was not just a success but also very symbolic in sending a larger message to the society to come together to work towards the cleanliness of their own city. While the civic sense of the people should definitely be invoked by such initiatives, it should not just be Northeasterners in New Delhi coming forward, but also the other members of Delhi who should take up such initiatives once it is planned further on. With camera person Deepak, this is Prashanti reporting for Eastern Sky Media. विश्व भर में फुटबॉल वर्ल्ड कप का जोश है। वहीं अरुणाचल प्रदेश के जीरो में भी फुटबॉल को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। जहां एक तरफ पूरे देश पर फुटबॉल की खुमारी चढ़ी हुई है, वहीं अरुणाचल के लोग भी किसी से पीछे नहीं हैं। वो भी फुटबॉल का मजा जोर शोर से ले रहे हैं। जीरो के सुबनसिरी स्टेडियम में आयोजित किए गए 47वें ड्री फुटबॉल टूर्नामेंट में कई लोग पहुंचे, जबकि पहले इसमें कोई ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेता था। फुटबॉल वर्ल्ड कप के चलते लोगों में ज्यादा उत्साह है। ऑल अरुणाचल प्रदेश एंटी ड्रग्स यूथ एसोसिएशन ने पकड़े कुछ नशीले पदार्थ। एक इंजीनियरिंग के छात्र से जब्त किया गया यह नशीला पदार्थ।
ड्रग ट्रैफिकिंग आज के ज़माने में सोसाइटी के लिए एंड यूथ एज ए पर्टिकुलर कि इतना बड़ा हानिकारक कीड़ा है जो यूथ के फ्यूचर एंड डेवलपमेंट को पूरी ही तरह से नष्ट कर देता है। आइए आज इसके बारे में और बात करते हैं। मेरे साथ ऑल अरुणाचल प्रदेश एंटी ड्रग यूथ ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं, प्रेसिडेंट मिस्टर तोगो रेबे एंड जनरल सेक्रेटरी मिस्टर मगाताको। आइए आज इनसे जानते हैं कि एग्जैक्टली ड्रग ट्रैफिकिंग किस तरह से और कितनी तरह से सोसाइटी के लिए हार्मफुल है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, पहले आप बताइए व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस ड्रग मीनास इन द सोसाइटी एंड इन अरुणाचल एज ए स्पेसिफिक। एज पर एस आई थिंक ये ड्रग मीनास जो यहाँ हमारा सोसाइटी में जो चल रहा है, तो वैसे पहले तो इसका ऊपर हम लोग ने बहुत स्टडी किया कि ड्रग मीनास होता कैसा है, और ड्रग्स का इफ़ेक्ट क्या होता है। तो देखा तो हमारा सोसाइटी का जो यूथ, जो हमने इसलिए रखा यूथ ऑर्गेनाइजेशन, हमारा जो यंगर जनरेशन जो है, जो बेटा अरुणाचल का फ्यूचर है, उसको पूरा वो सबको ये ड्रग्स पूरा ख़त्म कर रहा था। वैसे एक कीड़े की तरह होता है ना, तो हम एक वैसे मैं आपसू के मेंबर थे, तो वैसा करके उससे मैंने आपसू से एफिलिएट करके बात करके मैं खोलूँगा ये ऑर्गेनाइजेशन जो ड्रग्स के ऊपर लड़ते हैं। तो मेरे उससे वो जो है ड्रग्स एक वायरस की तरह है, एक वायरस की तरह है जो हमारा पूरा यंग जनरेशन को धीरे धीरे खा रहा है, ख़त्म कर रहा है ऐसा करके। तो जो ये ड्रग्स चीज़ है, इससे हमारा सोसाइटी जो है, इसको जो इधर में भी बहुत ज़्यादा फैल चुका है हम, और ख़ास करके अरुणाचल का ईस्टर्न एरिया जो है, ईस्टर्न एरिया TLC लाइक तिरप लोंगडिंग चंगलांग लोअर दियोंग वैली रोइंग पासीघाट, वहाँ तक बहुत सारा ज़्यादा बहुत भारी उससे आ चुका है, ज़्यादा वहाँ पहुँच चुका है। तो वहाँ से यहाँ ज़्यादा वक्त सप्लाई आ रहा है। तो देखा जाए तो अभी कैपिटल में तो और ज़्यादा हो गया, और यहाँ भी बढ़ रहा है अभी धीरे धीरे। तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का वही मोटिव है कि इसको जितना सकेगा जल्दी से यहाँ तो पहुँचने ही नहीं दे, और वहाँ तक जितना सकेगा पहुँचेगा, ऐसे करके हम अवेयरनेस फैला रहा है, जितना सकेगा कर रहा है। तो मेरा तरफ से वही है कि ये ड्रग्स तो बाहर के स्टेट्स का बात अलग है, जो अपना अरुणाचल में जितना देखा है, वेस्टर्न एरिया थोड़ा बहुत क्लीन है, पर ईस्टर्न एरिया में तो पूरा फैल ही चुका है। उसका कारण से वहाँ का जो लोग है, बाहर का रिफ्यूजी लोग जो होता है, इसका कारण से वहाँ हमारा लोकल को पहले ओपियम पिलाने लगा करके, वहाँ का जो चकमा एंड हाजुंग्स लोग है, जो हमारा कंट्री से बिलोंग ही नहीं करता है, जो इंडियन नहीं है, भरमिस लोग आके अभी वहाँ में ईस्टर्न एरिया TLC जैसा जगह में रह रहे हैं। तो हम लोग वही उसको देखकर हमारा ये यंग जनरेशन, अभी तो कुछ लोग बहुत बिगड़ गए, फिर उसको हम लोग जितना सकेगा समझा रहे, अगर वो समझे या ना समझे, हमारा वो कोशिश हमेशा जारी रहेगा। और यहाँ जो है, जो अभी तक जो वो चीज़ को अपनाया नहीं है, उसको हम लोग पहले से अवेयर कर देता है, और जो लिया भी है तो उसको हम लोग रिहेब अपने तरफ से देने की कोशिश करता है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगी कल के इंसिडेंट के बारे में, कल आपने जो सीज की थी, आप उसके बारे में काइंडली थोड़ा बताएं। एक्चुअली कल हम लोग का ये एक NGO है, और यहाँ पे हम लोग का काफ़ी जवान लड़का लोग को एक इंफॉर्मेशन देने के लिए रखा हुआ है। तो कल कुछ इंसिडेंट आया कि कोई एक लड़का है जो हीरोइन लेकर आया है। तो हम लोग का ये प्रेसिडेंट साहब और मैं और मेरा टीम मेंबर वहाँ पहुँचा, तो वहाँ 4.5 ग्राम मात्रा में हीरोइन मिला। एंड जो हीरोइन था, तो उसमें वो काफ़ी वो यूज़ कर चुका था। एंड उससे जब हम लोग इंट्रोगेशन किया कि, तो उसने बोला कि आई एम नॉट ए फेल्डर, आई एम जस्ट ए यूज़र। तो उसको हम पुलिस में इन्फॉर्म किया, तो पुलिस लोग बोला कि हीरोइन में जो भी मात्रा है, हीरोइन इस हीरोइन, और उसमें जो उसमें पेडलर लिस्ट में नहीं आने से भी, और यूज़र लिस्ट में भी एक ख़राब है बोल के। तो एक इंसिडेंट था। एंड बेसिकली बाय नेम तो लेना नहीं चाहता है, लेकिन ही वॉज ए वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। एंड बेसिकली वो अपना इंजीनियरिंग स्टूडेंट है। तो हम लोग उसी के लिए ही हम लोग ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुआ कि वो उसका जैसे जो इंटेलेक्चुअल लड़का आगे बढ़ना है, तो उसको हम लोग कल पुलिस में इन्फॉर्म करके कि बताया कि ये सब चीज़ खराब होता है, एंड ये सब चीज़ को छोड़ो, आप एक सक्सेसफुल टेक्नोक्रेट बनना है तो आप ये सब चीज़ को छोड़ो बोल के हम लोग कल का इंसिडेंट यही है। उनको कहाँ से मिला वो इतना भारी मात्रा में हेरोइन? तो फिर सब जगह अवेलेबल नहीं होता। हाँ, और उनको ये गुवाहाटी से ये आया था, तो उसको गुवाहाटी से उसका जो मेन जो उसको देने वाला है वो गुवाहाटी का एक लड़का है। एंड बेसिकली वो ये है
बंगाली लड़का है सुना है, तो उसको फिर हम लोग उसके नंबर पे ट्रेस आउट किया तो उसका नेटवर्किंग गौथी पे लग रहा था। क्या ये कल्चरल इम्प्रेशन को जो हम कंटिन्यू करते आ रहे हैं इसके वजह से है कि लॉ मेकर्स या लॉ जो प्रोटेक्टर्स हैं उनकी केयरलेस एटीट्यूड की वजह से है? लेकिन जो भी हो, द प्रॉब्लम इज़ दैट कि अभी ईटानगर पे और पूरे स्टेट पे इन एज ए होल ये ड्रग ट्रैफिकिंग जो कि फैल रहा है, जिसके वजह से बहुत सारे फ्यूचर यूथ्स के, ना कि सिर्फ यूथ्स के, बहुत सारे फ्यूचर सोसाइटी पे जितने भी मेंबर्स रहते हैं उनके बर्बाद होते जा रहे हैं। डेवलपमेंट के नाम पे तो कुछ हो ही नहीं रहा है यहाँ पे, बस ड्रग ट्रैफिकिंग जैसा एक मीनार जो है फैलते जा रहा है, जिसको गवर्नमेंट को श्योरली चाहिए कि कुछ स्ट्रॉन्ग पॉलिसी, स्ट्रॉन्ग प्लानिंग के साथ आए और ये सब मीनार्स को चेक करें। अरुणाचल प्रदेश के बाप्टिस्ट चर्च में भी मनाया गया फादर्स डे। इस अवसर पर चर्च के सदस्यों ने एकजुट होकर मनाया फादर्स डे। चर्च के सदस्यों ने एक दूसरे को बधाई दी और गिफ्ट्स भी दिए। वहीं चर्च के फादर रुबु आशा तादर ने बच्चों को पिता के लिए सम्मान की भावना और अनुशासन में रहने की बात की। इस अवसर पर चर्च के वरिष्ठ सदस्य लेखा लेमा ने ईस्टर्न स्काई मीडिया के साथ अपनी बात को साझा किया। फादर्स डे के अवसर पर ईस्टर्न स्काई मीडिया ने चर्च में हुए समारोह को विशेष तौर पर कवरेज किया। आइए देखते हैं विशेष कवरेज का एक हिस्सा। एक्चुअली ऐसा है, इस पृथ्वी पर कंटिन्यूटी के लिए रीजनरेशन, रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पृथ्वी पर कुछ भी नहीं रहेगा। मनुष्य रहने के लिए जन्म लेना ज़रूरी है। तो ये रीजनरेशन और रिप्रोडक्शन में माँ और पिताजी का इक्वल योगदान होता है। तो शुरुआत में मदर्स डे सेलिब्रेट करना शुरू किए हैं सब, तो उसको कंप्लीट करने के लिए ना, कम्प्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि मदर अकेले पृथ्वी को, सृष्टि को नहीं चलाती है, उसमें पिताजी का भी योगदान रहता है, इसलिए फादर डे भी शुरू किया गया। तो फादर का अकेले योगदान नहीं रहता है, मदर का भी योगदान है, लेकिन फादर जो है स्पेशली जहाँ पर पैटर्नल सोसाइटी है, जहाँ पर पिताजी का पोजीशन अच्छा है, वहाँ पिताजी ही फैमिली का सारा डिसीजन लेता है, निर्णय लेता है, बच्चों को कहाँ पढ़ाना है, परिवार को कैसे चलाना है, खेती कैसे करनी है। तो ये सारा पिताजी के ऊपर निर्भर करता है। और स्पेशली हमारे अरुणाचल प्रदेश जो कि पैटर्नल सोसाइटी है, वहाँ पर पिताजी पर ही सारा कुछ निर्भर करता है। उत्तराखंड से एक खबर है। उत्तराखंड में देविया आपदा से हुई तबाही को पूरे 1 साल हो गए हैं, मगर इस त्रासदी के जख्म अब भी हरे नजर आ रहे हैं। कुदरत के कहर से तबाह हुए गांवों में ना तो जिंदगी पटरी पर लौट पाई है और ना ही क्षतिग्रस्त सड़कें, पुल, स्कूल व अस्पताल भी पूरी तरह दुरुस्त हो सके हैं। 4 धाम यात्रा शुरू करने के लिए लगातार हाथ पैर मारती रही सूबे की सरकार ने अब तक उन 337 गांवों की सुध लेना भी मुनासिब नहीं समझा है, जो खतरे के मुहाने पर खड़े हैं। जून 2013 की आपदा में बेघर हुए राज्य के करीब 2500 परिवारों को सूबे की सरकार 1 साल बाद भी नई छत मुहैया नहीं करा पाई है। त्रिपुरा सरकार ने एक बार फिर बढ़ाई अपस्पा की अवधि। 6 महीने के लिए बढ़ाई गई है यह अवधि। अफस्पा एक आतंकवाद विरोधी कानून है जो आतंक को नियंत्रण करने के लिए सशस्त्र बलों को कोई कदम उठाने के लिए पूर्ण अधिकार देता है। शीर्ष सुरक्षा और राज्य सरकार के नागरिक अधिकारियों ने हाल ही में राज्य की मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति का आकलन किया और अगले 6 महीनों के लिए अफस्पा का विस्तार करने का फैसला किया है। त्रिपुरा से भी एक खबर है कि त्रिपुरा में त्रिस्तरीय ग्राम पंचायतों के लिए चुनाव 15 जुलाई को होंगे। इन चुनाव में 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है। 591 ग्राम पंचायतों में 111 सीटों के लिए, 35 पंचायत समितियों में 419 सीटों के लिए और 8 जिला परिषद में 116 सीटों के लिए चुनाव होंगे। ये जानकारी राज्य निर्वाचन आयुक्त वाई कुमार ने दी। कुल मिलाकर करीब 12 लाख लोग इस चुनाव में वोट करेंगे। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारे से भी एक खबर है। रविवार को सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव ने की यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठक। प्रदेश सरकार के सभी राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री और स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री थे बैठक में मौजूद। सियासी गलियारों में चर्चा थी कि इस बैठक के बाद मंत्रियों के सामूहिक इस्तीफे लिए जा सकते हैं। साथ ही अखिलेश यादव अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल भी कर सकते हैं। हालांकि ऐसा कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया है। 2014 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली सलमान खान की जय हो और आलिया की स्टेटस के रिकॉर्ड को तोड़ फिल्म हॉलीडे ने बनाया एक नया रिकॉर्ड।
बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार और दबंगल सोनाक्षी सिन्हा की जोड़ी ने साबित कर दिखाया है कि वो बॉलीवुड की सबसे परफेक्ट जोड़ियों में से एक है। अक्षय सोनाक्षी स्टारर फिल्म हॉलीडे ने बॉक्स ऑफिस पर अपने दूसरे शुक्रवार को 5 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर 2014 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली सलमान खान की जय हो और आलिया की 2 स्टेट्स के रिकॉर्ड को तोड़कर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। तू ही तो है ख्याल मेरा, तू ही तो है करार मेरा, झूठे नशे जहां में कभी तू ही तो है। तुम इससे शादी करने वाली हो? हाय हाय क्या बात है। ये आधा पागल, तुम आधी पागल, बच्चे पूरे पागल। आज के समाचार अंक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।